Dear student, today we have learned about forfeiture of share issued at premium. ऐसे शेयर को फॉरफिट करने की जनरल एंट्री समझेंगे जिनको प्रीमियम पे इशूड किया गया था. नाउ क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन. X Limited issued a prospectus offering 2 lakh share of rupees 10 each at rupees 14 per share. Now table prepare for issued 2 lakh share at the rate of rupees 10 each plus 4 rupees premium, issued price 14 per share. Amount was payable as follows: application rupees 4, allotment rupees 6 including premium, 2 as a capital part, 4 as a premium. First call money rupees 3, second and final call. Balance amount. Now total amount, application, allotment and first call rupees 13, 1 rupees second and final call. Now question information. Dinesh, the holder of 1000 share, did not pay the amount due on allotment and first call. Now Dinesh, holder 1000 share, did not pay allotment and first call money. His share were forfeited. Now forfeiture. Application paid, allotment and first call money did not paid on 1000 share. Now his share were forfeited. तो forfeited की एंट्री लास्ट में होगी एंड री इशूड ये भी बाद में किया जाएगा. तो इन्फॉर्मेशन है हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड 400 ऑफ दिस शेयर वेयर इमीडिएटली री इशूड क्रेडिटेड ₹9 पेड फॉर ₹8.40 पर शेयर. तो री इशूड कर रहे हैं ₹8.40 में और पेड अप ₹9 से शो करेंगे. फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टरवर्ड्स एंड इट वॉज ड्यूली रिसीव्ड. इसके बाद फाइनल कॉल किया गया जो कि रिसीव्ड हुआ. सो एंट्रीज in the cash book and the journal of the company. Also prepare the opening balance sheet. Now prepare cash book as a bank column. Subscribed 2 lakh share. Now first entry, application money received in cash book to share. Application money received on 2 lakh share ₹4 fully subscribed माना गया. Amount 8 lakh. Now next general entry for application money transfer to share capital. Share application account debit to share capital. Amount 8 lakh and 8 lakh. Application money transfer to share capital. Next, allotment money due. General entry. Share allotment account debit to share capital to security प्रीमियम रिजर्व. शेयर अलॉटमेंट डेबिट करें कितने से, तो 2 लाख शेयर से ₹6, 12 लाख ड्यू अमाउंट. शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर से ₹2 एज ए कैपिटल पार्ट है, 4 एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम. तो 2 लाख शेयर से ₹2, 4 लाख कैपिटल पार्ट.
and 8 lakh as a security premium reserve. Next entry, allotment money received recorded in cash book. Now calculate amount 12 lakh, ये ड्यू अमाउंट है। 12 लाख में से 1000 शेयर होल्डर जो है उन्होंने ₹6 ऑन अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया, यानी कि 6000 माइनस करेंगे। रिसीव्ड अमाउंट 11,94,000। नाउ टू शेयर allotment amount 11,94,000। तो ये जो 6000 अमाउंट रिसीव नहीं है ये एज ए कॉल इन एरियर है, इसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment amount ₹6,000 and 6,000. After allotment, first call money due. Now general entry, share first call account debit to share capital. 2 lakh shares ₹3 on first call, due amount total 6 lakh. 6 lakh. Now calculate received amount, total due 6 lakh, 1000 shares से ₹3, 3000 माइनस कर देंगे। रिसीव्ड अमाउंट 5,97,000। Now recorded in cash book to share first call 5,97,000, call in arrear amount 3000. Now general entry for call in arrear, call in arrear account debit to share first call 3000, 3000। तो यहाँ पे था दिनेश जो 1000 शेयर होल्ड करके रख रहे थे, उन्होंने एप्लीकेशन पे किया था, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं पे कर रहे थे, इमीडिएटली फॉरफीट कर लिया गया। तो अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू किया गया, रिसीव्ड करने की एंट्री कैश बुक में, जो भी कॉल इन एरियर था उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन किए। अब फॉरफीचर की एंट्री पास की जाए। नाउ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर से टोटल ड्यू अमाउंट कितना रहा, कॉल्ड अप वैल्यू 4 एप्लीकेशन, 6 अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, टोटल 13 रुपीज़। इस 13 रुपीज़ में से 4 एज ए प्रीमियम है एंड 9 रुपीज़ एज ए कैपिटल पार्ट है। तो शेयर कैपिटल जो 1000 शेयर हम फॉरफीट कर रहे हैं, कैपिटल पार्ट ₹9,000 से शेयर कैपिटल को डेबिट किया गया। जिस शेयर को हम फॉरफीट कर रहे हैं उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे डेबिट करना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 4 रुपीज़ प्रीमियम, यानी कि 4 रुपीज़ प्रीमियम 1000 शेयर से जो रिसीव नहीं हुआ उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर रहे हैं। 1000 से ₹4,000 एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर forfeiture to call in arrear। शेयर forfeiture तो 1000 शेयर से रिसीव्ड अमाउंट ओनली ₹4 ऑन एप्लीकेशन, नाउ 4000 on share forfeiture। 1000 शेयर डिड नॉट पे
allotment and first call money. This is call in area, total 9 rupees on 1000 share, 9000 as a call in area. तो ये जो एंट्री मेंटेन की गई ये क्या है, शेयर फॉरफीचर के लिए। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है हिज शेयर वेयर फॉरफीटेड एंड 400 ऑफ दिस शेयर वेयर इमीडिएटली री इशूड। इमीडिएटली री इशूड करने की भी बात है, तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं 400 शेयर री इशूड एट द रेट ऑफ रुपीज़ 8 रुपीज़ 40 पैसे पर शेयर। इसे पेड अप कर रहे हैं 9 रुपीज़ में। नाउ जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक से जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो ये री इशूड से रिसीव्ड अमाउंट टू शेयर कैपिटल 400 शेयर एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ 40 पैसे 3360 रुपीज़, ये रिसीव्ड अमाउंट हुआ। यहाँ पे जो लॉस है 60 पैसे का, इसको कहाँ से कवर करेंगे, फॉरफीचर से। तो इसके लिए एंट्री मेंटेन कर रहे हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जनरल एंट्री मेंटेन किया गया 400 शेयर से लॉस रुपीज़ 60 पैसे पर शेयर, अमाउंट 240 एंड 240। तो ये कंप्लीट हुआ। फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स एंड इट वाज ड्यूली रिसीव्ड। इसके बाद फाइनल कॉल किया गया और पूरा अमाउंट रिसीव्ड हो गया। तो ये जरा फाइनल कॉल के लिए समझा जाए। टोटल 2 लाख शेयर थे पब्लिक के पास, जिनसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल तक हमने एंट्री मेंटेन की, लेकिन वहाँ दिख रहा है कि 1000 शेयर को फॉरफीट कर लिया गया। तो यानी कि 2 लाख शेयर पब्लिक के पास थे, जिसमें से 1000 शेयर फॉरफीट किया गया। 1,99,000 शेयर पब्लिक के पास है। फिर उसमें से री इशूड किया गया है कितने, 400 शेयर री इशूड कर दिए। तो अब पब्लिक के पास प्लस 400 और हमने ऐड किया 1,99,400 शेयर पब्लिक के पास है। तो जो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा वो कितने शेयर से होगा, 1,99,400 शेयर्स। नाउ ड्यू एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल second and final call, share second and final call account debit to share capital। तो कितने शेयर से, 1,99,400 शेयर रुपीज़ 1,99,400 1,99,400। फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टरवर्ड्स एंड इट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। तो पूरा अमाउंट रिसीव्ड हो गया। तो यहाँ रिकॉर्ड करें कैश बुक में टू शेयर सेकंड एट फाइनल कॉल 1,99,400। तो ये जो हमने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन किया, इसमें पूरी ये जनरल एंट्री और कैश बुक हमारा मेंटेन हो गया है। साथ में ये जो फॉरफीचर हमने किया था शेयर, उनको री इशूड कर दिया गया। री इशूड करते समय जो लॉस है वो फॉरफीचर से कवर कर लिए। अभी एक एंट्री और पास करेंगे जो कि प्रॉफिट ऑन reissued transfer to capital reserve. Now general entry share forfeiture account debit to capital
रिजर्व। तो इसके लिए अमाउंट कैलकुलेट करें। 400 शेयर री इशूड किया गया था, तो नाउ 400 शेयर फॉर फ्यूचर वैल्यू रुपीस। तो ये फॉर फ्यूचर एंट्री से चेक करें। 400 शेयर फॉर फ्यूचर किए थे, फॉर फ्यूचर में 4000 अमाउंट है। नाउ 400 शेयर फॉर फ्यूचर वैल्यू 4000 लेस लॉस ऑन री इशूड, सॉरी 400 शेयर फॉर फ्यूचर वैल्यू 4000 नहीं होगा, इसको कैलकुलेट किया जाए जरा। टोटल 4000 अमाउंट ऑन 1000 शेयर। नाउ 400 शेयर फॉर फ्यूचर वैल्यू 1600 लेस लॉस ऑन री इशूड। तो 400 शेयर पे 60 पैसे का लॉस था, 240 वो माइनस करें तो 1600 माइनस लॉस ऑन री इशूड 240, 1360 रुपये ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नाउ इन ए जनरल एंट्री 1360, 1360। तो ये यहाँ पे जनरल एंट्री कंप्लीट हुआ और कैश बुक जो प्रिपेयर करने की बात थी वो भी कंप्लीट। तो अब कैश बुक का टोटल वैल्यू ये फाइंड आउट कर लें। डेबिट साइड 8 लाख प्लस 11 लाख 94,000 प्लस 5 लाख 97,000 प्लस 3,360 प्लस 1,99,400, टोटल 27,93,760। 27,93,760 and by balance carried down 27,93,760 rupees. And now prepare opening balance sheet. Equity and liabilities. First, shareholder fund A, share capital B, reserve and surplus. Working note 1, that means note to account for share capital. Now note to account, first share capital. Now first authorized capital, तो इस क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये बताया जा सकता है कि एट द रेट ऑफ ₹10 ईच का है। नेक्स्ट इशूड कैपिटल, पब्लिकली इशूड 2 लाख शेयर, 2 लाख शेयर at the rate of ₹10 each, 20 lakh. And next, subscribed capital,
subscribed and fully paid up. तो इसके लिए समझे, यहाँ पे हमें पता है 2 लाख शेयर हमने पब्लिकली इशूड किया था, जिसमें से 1000 शेयर हमने फॉरफीट कर लिया था, उनको माइनस किए थे। 1,99,000 शेयर में फिर वापस री इशूड 400 शेयर कर दिया गया। तो ये जितने भी शेयर पब्लिक के पास है इनसे पूरा अमाउंट रिसीव्ड है। तो इसको हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। 1,99,400 शेयर at the rate of ₹10 each, 19,94,000। कोई कॉल इन एरियर नहीं है, क्योंकि जो भी शेयर होल्डर थे जब डिफ़ॉल्ट किए थे पेमेंट करने में, तो उनके शेयर को हमने फॉरफीट कर लिया था। फॉरफीट करने के बाद उसमें से 400 शेयर रीशूट कर दिए, जो कि फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आ गया। तो 600 शेयर जो है वो फॉरफीचर में होगा। तो अब यहाँ पे ये हुआ। अब कोई कॉल इन एरियर नहीं है, तो ऐड शेयर फॉर फीचर। तो इसे समझा जाए, 1000 शेयर फॉरफीट किए थे, जिसमें से 400 शेयर को री इशूड किया गया। तो उसका जो फॉरफीचर वैल्यू था 1600, जिसको हमने क्या किया, 240 लॉस कवर करने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। तो अब हमारे पास जो शेयर फॉरफीचर में वैल्यू बचेगा वो कितने शेयर के लिए होगा, 600 शेयर। तो 600 शेयर हैं, इनसे ₹4 ऑन एप्लीकेशन 2400। नाउ शेयर फॉर फीचर जो कि वैल्यू ऐड किया जाएगा, 600 शेयर से ₹4, 2400। टोटल शेयर कैपिटल वैल्यू 19,94,000 प्लस 2400, 19,96,400। शेयर कैपिटल वैल्यू 19,96,400। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस, नोट टू अकाउंट 2 फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके लिए चेक करें, टोटल 1000 शेयर जो कि फॉरफीट कर लिया गया था, इनसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम मिला नहीं। तो टोटल हमारे पास 2 लाख शेयर थे, जिसमें से माइनस किया गया 1000 शेयर 1,99,000 शेयर से। एज यहाँ लिख के बताएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,99,000 शेयर से सिक्योरिटी प्रीमियम ₹4 पर शेयर, 7,96,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नोट टू अकाउंट 2 7,96,000। टोटल 7,96,000 प्लस 19,96,400, टोटल 27,92,400। कैपिटल रिजर्व तो ये अमाउंट 1360, ये कैपिटल रिजर्व, इसको भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ही भी ऐड कर लें, 1360। और टोटल वैल्यू 7,96,000 प्लस 1360, 7,96,000।
7,360। तो ये वैल्यू अब करेक्ट किया जाएगा 7,97,360 rupees. Now recorrect value 19,96,400 plus 7,97,360 rupees. 27,93,760 rupees. तो ये बैलेंस शीट कंप्लीट।